आप रेफरेंस देख के ना सोच तो लेते हो यार ये बनाना है, लेकिन आप कंडीशन देखो, आप स्पेस देखो, आप बजट देखो, क्लाइंट देखो। प्लस आपका रिलेशन बिल्ड हो जाता है ना, कोई प्रोजेक्ट का नहीं रहता। ना ही मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। अगर मैं किसी से रिलेशन बन गया ना तो फिर मैं वहाँ फिर 100 प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। तो पिंटरेस्ट के अलावा आप और कहाँ पे जाते हो इंस्पिरेशन? यार मतलब समझ के बाहर है, एक तो AI आ गया, मेरे 2 3D वाले तो निकल गया। क्लाइंट मेरे से बड़ा डिज़ाइनर आज की डेट में, वो जो बताता है ना मैं कहता हूँ हाँ जी सर हो जाएगा। इस कुर्सी पे जो भी बैठा हो फिलोसोफर बन जाता है। अब वी आर नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट, वी आर सेलिंग अ सर्विस, और सर्विस लोग तब तक नहीं लेते जब तक अपनापन नहीं लगता। So Shlok, tell me one major blunder that you made in your early stages that could help a fresher. तो फॉर इंस्टॉलेशंस एंड स्पेशल डिज़ाइन ना इट्स स्टिल द स्टार्टिंग ऑफ इट। अभी बहुत बहुत कुछ हो सकता है। इट्स लाइक नॉट डिस्कवरिंग, इट्स लाइक इन्वेंटिंग। रोज़ करोगे तो कुछ नया आएगा, सोचते रहोगे तो नहीं आएगा। इट इज सो व्हाट ग्रेट थिंग यू लर्न व्हेन यू डू टेम्परेरी आर्किटेक्चर इज परस्यू समथिंग। इट्स जस्ट बिकॉज ओ हाउ जस्ट बिकॉज यू गेट टू नो द राइट वे टू डू दैट। Welcome back to yet another episode by Just Because. Today we have Shlok Jham with us, popularly known as SJ Made. He not only designs beautiful homes and commercial sites, but also designs amazing sets, visual merchandise, and installations, also known as temporary architecture, if I'm not wrong. Yeah, right. So we are going to use this term a lot. So let's just get straight into it. Hi, Shlok. Hi Muskan, how are you? I'm good. How are you? All good, all good. I'm very excited to be here with you. Since you have started this, I was keen on coming here and talking with you. Finally, I'm here. Thank you. Cheers. 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 So, Shlok, what is more fun, designing homes or designing sets? I think designing sets was never fun for me, but eventually, again, I was a design student studying interior architecture and design from Pearl Academy, as you know. So we never focused on events and temporary stuff, but we were more focused on interiors always. But once I started with interiors, I learned a lot of spatial design, planning, functionality, what works, what doesn't work. So, according to this, when you talk about temporary architecture, that also includes interior somehow. Like basically, spatial design, I would say it includes. So, in interiors, we see a long term of functionality, whether this will work or not. In temporary, we just talk about 1 hour or maybe 1 week maximum because it is temporary. So, all of that functionality, ethics comes from that stage and can be carried here. So somehow it is correlated, not somehow it is correlated. Both are correlated, yes. So, कैसे आपने start करा going in the direction of temporary design? Because I remember you were always doing interiors of homes and commercial sites. So, कैसे transition हुई आपकी journey? So when I passed out of college, I was eager to go out and study abroad and take it forward. But COVID happened at that moment, so it was a very different stage, very difficult stage to decide. Should I go out for studies, which I can't, of course? Should I wait for the COVID to get end or no? Or should I start with my brand? So eventually, I started up with my brand because I knew studying out is not the point right now, and I never wanted to go abroad and work there. I could go, work, chill, and come back, but I can't work there permanently. I have to be based out here. So that clarity made me that I will work here and I'll set up my brand, and the brand just not would be a company, but it would be a me reflecting a company. Every brand is like that, of course, but I knew that something I create would be like my stamp, my tag. So that is how I decided that I'll be doing my starting up with my company. Yes. I really agree with what you said that every company is a reflection of its founder. धीरे धीरे ना वो एक सेंस आने लगी जाता है unwillingly willingly. So I can see that a sense in SJ Made as well. Plus, I always wanted ki it doesn't somebody doesn't know the founder of the company. I always wanted out I'm there. My personality reflects more than a brand. I want to create an experience. Like we wear brands, you must be having a particular brand you want to wear, might be a watch, shirt, anything. So for the spatial and experience, I want that to be SJ Made basically. So that is the point. It doesn't specify something specific at the same point, but it tells you about the experience. It focuses more on the vibe around you, not just the four walls, but the experience around you, where you functioning, where you walking, where you talking. So it means that to me, that SJ Made means that you made that space particularly for somebody or for yourself or anything like that. Yeah. So how did you transition in that
Zone then. कौन सा था आपका पहला set? So my first set was for a brand which was also a startup. It was a bag, luxury brand Miragio. It's a very famous. The brand has reached to like good heights. So he had also started up his brand, and I was doing interiors at that moment, residential, commercial, those projects, just going on taking. So one of my friend, she's a very good stylist again. She called me, and she knew that I do interiors, and she's like, can you create this kind of stuff? Like, we are planning, the shoot looks like this, and the vision is this. Can we create something like this? And I was like, yes, because I've been doing interiors, so we have been creating structures, products, the vibe, how to create it. So I said, yes, of course I can do it. And then she like the we took it forward, and we had finalized how the set will look like, the things will look like, and everything, and we created it. And the shoot went, of course, really well. Everything went well, and post that, inquiries on on set temporary started getting on me, like, uh, though people still think that interiors and set designing, any temporary architecture is different, but it's correlated, everything is related, it's just for the timing, and that is permanent. So that's how the journey for temporary stuff started for me. That's how I got to know inquiries and stuff, like, yes. So crux तो एक ही है, जगह वही है, how you Hmm. design it is हाँ, different. बी इट बी इंटीरियर फॉर अ घर, Hmm. वो आपका ऑफिस हो, आपका रेस्टोरेंट हो, आप पार्टी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू डूइंग अ बर्थडे पार्टी, यू वांट अ स्पेस डिज़ाइन, तो आप कहीं ना कहीं उस स्पेस को बदलोगे ना, उसे कुछ बनाओगे। ऐसा नहीं है कि आप, ठीक है, घर का हॉल था, टेरेस थी, रेस्टोरेंट था, आपने सेम रहने दिया। यू विल ऐड वाइब टू इट, बी इट बी फ्लावर्स, बी इट अ बैकड्रॉप, बी इट बी एनी एंट्रेंस, आप एक्सपीरियंस ऐड करोगे, दैट इज समथिंग इज देयर फॉर अस, यस। So tell me, ऐसे क्या pros and cons है when you see example ले लो कि when you're designing a set versus you're designing a home, क्या pros and cons है दोनों के? प्रोस एंड कॉन्स है, वो एक दिन की बात है, वो एक साल की बात है। Quick money one. इतना फर्क है एक दिन में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, इंटीरियर क्या है, लंबा पीरियड चल रहा है, परमानेंट स्ट्रक्चर है, तो वो इवॉल्वमेंट सिर्फ आपकी नहीं, क्लाइंट की भी है, मेरी भी है, लेबर की भी है। सो 3 teams आर देयर टिल द प्रोजेक्ट इज फिनिश फॉर मल्टीपल डेज, मंथ्स एंड years. And for architecture it's very quick because you know the deadline. The event or the production or the installation is on a particular date. You have to move fast, you need to take decisions fastly, rapidly, so that that thing can be done. So what great thing you learn when you do temporary architecture is planning and execution at the same time. In interiors, when you plan and you execute, things change because the duration is long. The duration is very long. Things also change. आज हम कुछ सोचते हैं, आपको पता है 2 महीने बाद आपका भी कुछ माइंड चेंज हो जाएगा, मुझे अब ये करना है। जब आपको पता है आपको करना ही अगले हफ्ते है, या वांट टू डू इट नेक्स्ट मंथ, यू विल बी वेरी सर्टेन अबाउट इट कि यार यही कर सकता हूँ और कोई ऑप्शन ही नहीं है। Decision making बहुत quick हो जाती है. वो बेटर हो जाती है, एंड यू गेट द थिंग्स डन इन द राइट वे automatically. So it's very plus point when you do temporary architecture. You become a good planner, yes, and executor at the same time. So you're saying that आपके planning skills and organizing skills better हुए हैं? मतलब ऐसा हाँ हो ही रहा है। Every day is a new day. 3 days in. So ऐसा नहीं है कि हो गए हैं, हो रहे हैं, बट अब रोज एक मतलब आई एम लर्निंग एवरी डे, एंड एवरी डे आई एम taking up new projects, like new projects as in different vibe, I'm meeting new people. So what I see in interiors, if I start a project with a person or my client, I'm very indulged into that for a very longer period of time. Of course, when I'm doing any kind of event, pop-up installation, that's quick, and I get to meet new people every time. So new people making me explore more work, more opportunities like that. So yeah. So अभी आपका क्या current split है projects का, like कितना ज़्यादा आपका temporary architecture है and कितना ज़्यादा commercials and homes है? I have interior projects going on. वो आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं, जैसे पर्टिकुलर नंबर जो आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर मिक्स, इसके अंदर घर भी हैं, दे आर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, दे आर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, एंड देन देर इज अ डिफरेंट कैटेगरी विच इज एफेमेरल आर्किटेक्चर, वी कॉल इट टेम्परेरी आर्किटेक्चर। एफेमेरल इज विच इज शॉर्ट लिव्ड, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता, तो वो एक दिन के लिए भी हो सकता है, विच इज़ लाइक अ इवेंट, वो 3 महीने के लिए भी हो सकता है, विच इज़ लाइक एन इंस्टॉलेशन। सो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज इन एफेमेरल। इवेंट्स हो गए, events can be brand activations, any event happening for a brand. Then there is events ho gaye. Then there is set designing, which is for the shoots. So I work with a lot of fashion brands, product brands, unko apne shoots karne hote hain, set karne hote hain, we create a set vibe for them. Then there is pop-ups. Pop-ups is again installation. It's a part of events, but it's like when you depicting your brand or identity more through a project or a structure.
So that is like a pop-up. Again, it's like an installation. So different categories to ephemeral architecture, temporary architecture. Yes. Coming by installations, I remember कि एक दो सालों में I've been seeing installations हर जगह. पहले नहीं होती थी वो कहीं भी. आप मॉल चले जाओ, रोड पे हो, कहीं भी हो, पहले बिल्कुल नहीं दिखती थी. अब बहुत ज़्यादा दिखने लग गई है. तो क्या लगता है आपको कि वो एकदम से I get your point. पहले भी होती थी, but वो normal public को display में नहीं थी. मतलब it wasn't visible to the normal public, or neither the normal public would display. With time, we have started, respecting artists, people around, artwork around, creative, and of course, a lot of creative people are rising now than before. पहले भी सब होता था. There were a lot of artists before also, but there were dedicated places to showcase them. Maybe a museum, maybe an art gallery, or maybe theater. But now even normal people like us creating brands are now started to go beyond our fashion. Like it's just not about wearing clothes now. If I'm wearing this particular clothes, I want to wear it in a particular space now. So I'll just go more abroad and more around me and take that move. So now people as a brand, if they think they are doing any fashion store, any brand, if they want a store or something as the brand, they would want their presence to be outside. Yes, they want to give their experience out, because every brand or every company want to have a particular mindset, और कि मुझे ऐसे दिखना है, मुझे ऐसे दिखाना है. तो अगर वो उन्हें एक अपने से भी दिखता है और अपने स्पेस से भी ज़्यादा दिखता है कि कैसे वो दिखा सकते हैं, तो they'll put an installation, they'll do a pop-up, they will how to communicate with people personally, physically. Social media पे तो हो ही रहा है. This you get on board and get done physically in the space. तो आप दिखते हो लोगों को बाहर. पीपल गेट मोर इन्वॉल्व व्हेन दे सी द प्रोडक्ट. एक ऑनलाइन ब्रांड पोर्टल पे दिखता है, अलग दिखता है, और जब एक फिजिकली आप स्टोर जाते हो तो अलग दिखता है. तो इट्स डिफरेंस लाइक दैट. सबकॉन्शियस में भी फीड हो जाती है. यस यस. आई थिंक इंस्टॉलेशन इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा पे मतलब अवेयरनेस हो रही है क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम अब लोगों के पास ज़्यादा आ रही है. वो कोविड के बाद आ गई. पहले क्योंकि जितनी जैसे जैसे बढ़ रही है डिस्पोजेबल इनकम, पीपल आर स्पेंडिंग ऑन एक्सपीरियंसेस एंड वांट टू एक्सपीरियंस मोर स्टफ. Yes, things are rising. If you see, event industry has rise more than ever after COVID. Before it was there, but you must have seen parties हो रही हैं, concerts हो रहे हैं, events. Have you ever seen like all the artists performing in 1 month? So it's happening now. Again, yes, disposable income have raised because people have started thinking and living more in the present now. So Shlok, give me one tip for anyone entering the experiential design studio direction. Experiential design studio direction. I think आपको मतलब rigidness हटानी पड़ेगी. You have to explore a lot, not just by trying to work on more things, but exploring more, seeing more materials. अब again ऐसे जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऐसे पॉडकास्ट और देखो, तो you'll get to know what people are doing actually. लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, मतलब मटेरियल्स के साथ खेल रहे हैं, चीज़ों के साथ खेल रहे हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं. तो be out there, travel a lot, see things what are happening. Every country, every state have different language of speaking, communicating, talking. तो I think इन चीज़ों से ना you get to know what can be done. Still not ऐसा नहीं है कि installation अभी भी complete हो चुका है. Like we know fashion कपड़े ही है, इसके अलावा भी कुछ नहीं आ रहा. We know there's a big gap. तो for installations and special design ना it's still the starting of it. अभी बहुत बहुत कुछ हो सकता है. It's like not discovering, it's like inventing. डिस्कवर हो रहा है, इन्वेंट और चीज़ें हो सकती हैं. हाँ, बहुत कुछ हो सकता है. तो मुझे लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. कुछ एक इसका पाथ नहीं है. आपको कोई एक्सपीरियंस सिखा नहीं सकता. विद टाइम आता है आपको, तो वो विद टाइम स्पेंड करो. हाँ, जस्ट स्पेंड योर टाइम ऑन गुड थिंग्स, ऑन गुड वट एवर यू लाइक. हाँ, खोलो दिमाग, खोलो, कुछ भी करो. आपका मन है बाहर घूमने जाने, निकल जाओ. कहीं पर्टिकुलर कुछ खाना पसंद है, वहाँ रेस्टोरेंट पे चाहे रोज़ जाओ. अगर आपको कुछ पसंद है तो आप उस जगह पे रोज़ जाओगे. रोज़ जाओगे तो उसको इनहैबिट करोगे, उस वाइब को. तो उससे आपके अंदर यू गेट टू, आपको कुछ डेवलप हो सकता है माइंड में. ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. तो इस तरह का एवरीडे थिंग रोज़ करोगे तो कुछ नया आएगा. सोचते रहोगे तो नहीं आएगा. इट इज़ समथिंग आपको एक्शन देना पड़ेगा रादर देन जस्ट कीप इट इन योर माइंड एंड प्लान. मतलब ऑब्वियसली आप करते रहोगे, ज़रूरी नहीं एक बारी में सब आ जाएगा. अगेन मेरी चीज़ें करो, कुछ भी करो. वो मन कर रहा है, किसी से कुछ भी डेवलप होता है पता ही नहीं लगता. एंड हर चीज़ का ना सोल्यूशन निकालो. मैंने देखा है जो लोग एकदम से कहते हैं ना कि यार नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, वो वैसी वही बात खत्म हो जाती है. हर चीज़ हो सकती है, हर चीज़ का सोल्यूशन निकालो और काम हो जाता है. जितना सोल्यूशन निकालोगे ना, आई एम टेलिंग फॉर द टेम्परेरी आर्किटेक्चर वी टॉकिंग अबाउट, इट मीन्स ओनली जस्ट टू वर्क ऑन द सोल्यूशन, गेट द थिंग्स डन.
वो आप करोगे तो चीज़ें होंगी, नहीं करोगे टेम्परेरी आर्किटेक्चर बहुत मुश्किल है फिर वैसे करना। क्योंकि कहीं भी कुछ भी बना देना है। हाँ, कहीं भी कुछ भी बनाने का दम रखो और सोच रखो बस, तो आप कर सकते हो। जुगाड़ू बनो। हाँ, जुगाड़ तो, और हम माहिर हैं दिल्ली वाले, इंडियंस आई वुड से, जुगाड़ू बनना पड़ेगा इस काम के लिए। हाँ, और अगेन अ वेरी स्मॉल टिप फॉर पीपल कमिंग ऑन बोर्ड, आई वांट मोर पीपल टू कम ऑन बोर्ड, कुछ नया करें। डोंट जस्ट रिस्ट्रिक्ट टू इंटीरियर्स, बिकॉज राइट नाउ व्हाट कोर्सेज और व्हाट लर्निंग जो चल रहा है हमारा भी, वहाँ पे आपको मोर इंटीरियर स्पेसिफिक ही चीज़ें सिखा रहे हैं, तो लिमिट मत करो इंटीरियर से। इंटीरियर जस्ट नॉट पुटिंग फर्नीचर, हाँ ऐसे नहीं फर्नीचर लगा दी मोल्डिंग नहीं है, इट्स अ फंक्शनैलिटी, मतलब बहुत चीज़ें साथ आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जस्ट डोंट रिस्ट्रिक्ट टू दोज थिंग्स, गो बियॉन्ड, think more, see more. There's a designer, Akib Vani, which again I think is doing crazy. So he's an interior designer. Now he's an interior designer, but he started with fashion, clothing. From clothing, he started designing spaces. If I'm not wrong, he's the one who designed the Indian cricket team ki jersey. Jersey, yes, I was coming to that only, because what he started was he was doing spaces, concerts, pop-ups, installations. Now he designed a jersey. So you see, there's no link to it. If a layman would, अगर लेमैन कोई बात करे इस बारे में, वो सोचेगा कि यार जर्सी बनाने वाला अलग हो गया, ये अलग हो गया, ऐसा नहीं है। आप सब कर सकते हो। आज फैशन डिजाइनर्स इंटीरियर भी कर रहे हैं और इंटीरियर वाले फैशन भी कर रहे हैं, दे आर कोरिलेटेड। फैशन कहाँ परफॉर्म करोगे? इंटीरियर के अंदर। इंटीरियर नहीं होगा तो फैशन किसी काम का नहीं है। इट्स लाइक एवरीथिंग इज कोरिलेटेड, तो डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। कोई भी अपॉर्चुनिटी, बी इट दिस वार्डरोब, दीज बुक्स, क्लोथ, एवरीथिंग गोज टुगेदर। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, कीप एक्सप्लोरिंग ऑन इट, तो आपको काफ़ी चीज़ें उससे सीखने को मिले। Have love for the craft. हाँ, हैव लव फॉर द क्राफ्ट, मटेरियल, नेचर। Nature, yeah. So, I know that you're very active on social media. So, do you get work through social media? Inquiries वगैरह आती है, कैसा है वो? Yes, recently, so I started my page when I started my company, of course, but I wasn't much active because I was exploring options. I was working, trying to learn. So eventually, last year I got a little more active. Yes, you get a lot of work from Instagram. I think more than work, you get recognition basically. Yeah, क्योंकि हमारा काम ऐसा है Instagram पे, अब we are not selling a product, we are selling a service, और सर्विस लोग तब तक नहीं लेते जब तक अपनापन नहीं लगता। तो अपनापन किससे आता है? आप किसी को बताओगे मेरे बारे में, मैं आपको बताऊंगा, तो हमारे काम में ज़्यादा काम मिलेगा, rather than just seeing on the Instagram. I think that, but of course social media also works, and simultaneously PR, making relations with people also work. So I think it should be a balance of both and nothing one thing specific. Yes, and हमारी लाइन में specifically experience works the most, because हमारी लाइन में with experience you get to know more things and then you can deliver more things out. एक तरीके से पोर्टफोलियो है आप। हाँ, portfolio build हो रहा है, you can say that. मैंने देखा है कि ना काम आज के डेट में सबका अच्छा है, ऐसा नहीं कोई खराब काम कर रहा है। Everybody, yeah. पर ना होता क्या है कि एक रिकरिंग क्लाइंट जब आपको आता रहता है आपके पास क्लाइंट, देन इट्स मोर देन जस्ट वर्क। तो वो एक क्या चीज़ होती है जिससे यू कैन बिल्ड अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, बिकॉज 19-20 होता है, सबका काम सेम ही होता है। So, but you asked me a very nice question, because मेरा जो working terms है ना, that is more on relation than on work. For example, अगर मुझे 10 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मैं 2 ही कर रहा हूँ, एक ही कर रहा हूँ, सही बताऊँ, क्वांटिटी नहीं कर रहा, क्वालिटी कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम बिल्डिंग रिलेशन फर्स्ट एंड देन वर्किंग फॉर देम। तो आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। प्लस आपका रिलेशन बिल्ड हो जाता है ना, वो एक प्रोजेक्ट का नहीं रहता, ना ही मैं एक प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। अगर मैं किसी रिलेशन बन गया ना, तो फिर मैं वहाँ फिर 100 प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। मुझे एक ही प्रोजेक्ट करके मेरा कोई फायदा नहीं होना, मैं, क्योंकि अगेन मैं नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट, आई एम सेलिंग अ सर्विस। आई मेक यू हैप्पी, आई एम मेकिंग अनदर 50 पीपल हैप्पी और मीटिंग यू। दैट इज हाउ आवर थिंग्स गो ऑन। So building relations is the most important thing for my business, I would say. And how did you figure this out? I was always a person, going out, meeting people. And because when I started also, I didn't have clients, of course. So who helped me out? People like you, my friends, my family. So that's how, I got the circle around. Yes. Got it. So, what's the key to stay relevant in your career for, say, like a decade? हाँ, तो वही जैसे मैं बताया कि कीप एक्सप्लोरिंग, मतलब बी आउट देयर। अपने, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ देखना है, आप सब कुछ सीख भी नहीं सकते। जो आपको पसंद है ना, उसमें परस्यू करो, लेकिन बढ़िया करो, तो उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाता है। आप 2 काम करो, लेकिन तसल्ली से करो, बढ़िया करो, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। नीश पकड़ो। हाँ, अपनी नीश ऑब्वियसली पकड़नी पड़ती है, और नीश, पीपल से दैट वी हैव मेड अ नीश, हम बना रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम लगता है, अनलेस यू जेन्युइनली मेक इट।
आप नीश बनाते नहीं हो, बन जाती है. आई थिंक दैट या क्योंकि आप एक चीज करते रहोगे बार बार करते रहोगे तो नीश बनती है, क्योंकि आपको नीश बनाने के लिए पहले एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तभी तो नीश पकड़ोगे. अब नीश से स्टार्ट ही नहीं कर सकते, कहने मतलब ये है मेरा. ट्रू 10 चीजें करोगे तो दो दो चमकेगी, फिर दो में से दोनों अच्छा, ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबका अच्छा लगना इज नॉट रेलिवेंट. मेरे को क्या अच्छा लग रहा है वो अलग होगा आपसे, तो वो दोनों अलग अलग चीजें हैं. तो आप वो पकड़ो जो आपको अच्छा लग रहा है, एंड देन यू विल फिगर इट आउट कि हाँ लोगों को भी वो अच्छा लगने लग रहा है. दैट इज व्हेन यू क्रिएट अ नीश. इज फॉर्मल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट इन योर फील्ड? बिकॉज मैंने देखा है कि जैसे आपने 4 साल का कोर्स करा है, कोई बस पोस्ट ग्रेड कर लेता है 1 साल की, कोई कुछ कोर्स ही नहीं करता इन दिस करियर. मतलब ऑफ कोर्स आई थिंक एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट. ऐसा तो नहीं है कि एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट. क्या डिफरेंस होता है if someone like you who have done your formal education in this field versus someone who hasn't? So I think everybody should go to a college, not necessarily a college, but pursue something. It's just because, oh wow, just because you get to know the right way to do that. I'm not saying it will get you done पूरा पूरा आप उसी से सीख लोगे, नहीं. और आपको एक पाथ मिलता है, you get to meet the right people. अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ, चाहे मैं नहीं सीख रहा, मतलब मेरा मन नहीं है सीखने का, but I'm meeting the right people in my field. The same like-minded people. बट आपको काम खुद करना पड़ता है. कॉलेज कोई आपको सिखा के नहीं भेजता. तो आई थिंक आपको खुद निकालना पड़ता है. विच एवर कॉलेज यू हैव टू टेक आउट, ग्रास्प दैट फ्रॉम पीपल अराउंड, एंड यू गेट द नॉलेज अबाउट दैट देन. वैसे भी डिजाइन फील्ड ऐसी चीज है कि पीयर लर्निंग से ही ज्यादा लर्निंग होती है. हाँ, आपको कोई सिखाएगा नहीं, लेकिन आपको पाथ मिलता है, प्रोसेस मिलता है कि कैसे की जाती हैं चीज़ें. दैट इज समथिंग यू लर्न मोर फ्रॉम कॉलेज. आपको डिज़ाइन सिखा नहीं सकते, बिकॉज डिज़ाइन इज इनोवेशन, इट्स चेंजिंग एवरी डे. तो कल क्या होना है कोई सिखा नहीं सकता, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस बात को कि कैसे पकड़ा जाए उन चीज़ों को. So formal education, yes or no? यस. मतलब लर्निंग लर्निंग एवरीथिंग एवरी डे इज अ ब्लेसिंग, आई वुड से. रोज़ नई चीज़ें सीखनी चाहिए. मे बी नॉट फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन, बट इनफॉर्मली इफ यू मीटिंग द राइट पीपल, आप किसी एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो बोथ वे बैलेंस रखो. इफ़ यू थिंक आपके पास एक्सेस है विदाउट गोइंग टू अ कॉलेज, प्लीज़ गो हैड, डोंट वरी. नहीं लगता है नहीं है, आप एक किसी नई फील्ड में एंटर कर रहे हो, तो देन टेकिंग अ पार्ट थ्रू दैट इज अ बेटर ऑप्शन. So Shlok, tell me one major blunder that you made in your early stages that could help a fresher. सो अगेन आई वॉज टेलिंग कि ब्लंडर जो है, यू मीट द राइट पीपल, बिकॉज अगर आपकी टीम अच्छी है, आपको पता है, तो आपके ब्लंडर्स नहीं होंगे. दैट्स व्हाट आई लर्न, बिकॉज काम करते करते हुए ब्लंडर्स, किसी का कुछ गलत हो गया, कुछ मैंने सोचा कि इसकी वर्किंग, फॉर एग्जाम्पल इस वार्डरोब की वर्किंग ओपनेबल होगी, बट वो ड्राइंग में अगर साइज बियॉन्ड द सीलिंग चला गया या छोटा हो गया, तो उसकी वर्किंग खराब होगी. तो ऐसे ब्लंडर्स बहुत होंगे आपकी लाइफ में. तो मेक श्योर यू टेक क्रॉस चेक एवरीथिंग बिफोर डिलीवरिंग इट आउट टू द क्लाइंट, with yourself also, with the designer also, and then with the client. So it's a process, just take it slow, that's how I said. और एक बहुत अच्छा पॉइंट है हमारे में कि वी आर वर्किंग एवरी डे न्यू प्रोजेक्ट्स. तो न्यू प्रोजेक्ट में न्यू फ्यूचर तो है ही, मतलब पता नहीं क्या हो सकता है. तो देर आर ब्लंडर्स, स्मॉल बिग होते हैं, प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगे, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ नया करने का मन करता है. तो उसे ब्लंडर ना हो, तो अगेन स्मार्ट प्लानिंग आई थिंक इज बेटर, एंड गेटिंग इट डन स्लोली स्मार्टली इज द बेस्ट थिंग. ब्लंडर तो होंगे, हाँ, क्योंकि लाइन ऐसी है, काम ऐसा है, और आप अकेले नहीं कर रहे. और आप खुद फर्स्ट टाइम कर रहे हो. पहले कुछ सोच रहे हो, फिर आप किसी को डेडिकेट करते हो कि शेप इट फॉर मी, वंस इट्स शेप्ड, इट्स देयर ऑन द ड्राइंग और द लेआउट, यू हैव टू एग्जीक्यूट इट. वंस इट्स एग्जीक्यूटेड, आई एम नॉट श्योर क्लाइंट को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा. तो वो है, लंबा प्रोसेस है, तो रोज सीखने को मिलता है, और रोज नए ब्लंडर होते हैं. It's a journey. इट्स अ ब्लंडर जर्नी. So tell me, where do you see the like design trends going in the like next 2 to 5 years? क्या कुछ predict कर पा रहे हो, क्या चलेगा? यार मतलब समझ के बाहर है. एक तो एआई आ गया, मेरे 2 3D वाले तो निकल गए. खाली जॉब. नहीं, हाँ, नहीं, क्योंकि एआई से मतलब काफ़ी काम हो रहा है अगेन. सो आई थिंक सर्विस इंडस्ट्री वुडंट एंड इन फ्यूचर. डिज़ाइन कैन बी क्रिएटेड, स्टिल कैन बी क्रिएटेड. एवरीबडी इज डिज़ाइनर, कौन डिज़ाइनर नहीं आजकल. मतलब मेरा क्लाइंट मेरे से बड़ा डिज़ाइनर है आज की डेट में. वो जो बताता है ना, मैं कहता हूँ हाँ जी सर, हो जाएगा. बट हाँ, तो फ्यूचर इसका अगेन अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट ऑब्वियसली नहीं कर सकते. तो आई थिंक बहुत आ सकता है, इज गोना बी फास्ट.
बट बहुत कुछ होने वाला है, आई एम वेरी श्योर, लाइक दिस इंडस्ट्री, बिकॉज आई डोंट सी इंटीरियर्स इन जस्ट स्मॉल स्पेस, बट आई सी इट एज अ इंटीरियर ऑफ अ स्पेस, ऑफ अ वाइब, एनीथिंग लाइक दैट. तो लॉट ऑफ थिंग्स आर इवॉल्विंग, बहुत चीज़ें हो रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो इट्स अनप्रिडिक्टेबल, इट्स वेरी अनसर्टन, एंड इट विल गो क्रेजी. एंड प्लस जब जनरेशन आ रही है वो तो अलग ही सोच रही है, चाहे हो सकता है नहीं हो सकता, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट. एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, विच आई लाइक हायरिंग अबाउट द, you know, the start, what do you call Gen Z. Gen Z also, like the startup designers, जो मुझे भी लगता था अपने टाइम पे सही था. आप ना थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो उस टाइम पे. क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि हो सकता है या कि आपको पता ही नहीं है कि वो हो भी सकता है, नहीं हो सकता, तो आप ना कुछ भी सोचोगे उस टाइम पे कि देख लेंगे ना, हो ही जाएगा. तो वो एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है इनिशियली स्टेज में. विद इन टाइम ना फिर आप रिजिड होते रहते हो, क्योंकि आपको पता होता है ये हो ही नहीं सकता, तो सोचो ही मत ना, हाँ ऐसा सोचो ही मत, मतलब वैसा कुछ वास्ट सोचो ही मत. तो आई थिंक इट्स गुड दैट न्यू डिजाइनर्स आर कमिंग अप ऑन बोर्ड, न्यू पीपल आर कमिंग ऑन बोर्ड, एंड थिंग्स आर चेंजिंग, टेक्नोलॉजी इज कमिंग. तो बहुत वास्ट होगा और बहुत क्रेजी होगा, बट आई थिंक. अभी आपके लिए क्या फेवरेट डिजाइन ट्रेंड चल रहा है? जैसे कि आपको बहुत मजा आता है जिससे एक्सपेरिमेंट करने में या यूज करने में अपने साइट्स पे? सो what I like about design is problem solving in a different way. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ट्रैवलिंग और मे बी आई एम ईटिंग फूड एट एनी रेस्टोरेंट, तो उस वाइब से अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ, कुछ इनहेरिट कर रहा हूँ, तो उसको ना मैं कहीं और यूज़ करूँगा. अब वो मुझे नहीं पता कब, लेकिन जब अपने आप प्रॉब्लम आएगी, वो अपने आप मैं उससे रिलेट करता हूँ. सो आई एम वेरी नॉट अटेंटिव, बट आई एम वेरी ऑब्जर्वेंट व्हेन आई एम सिटिंग इन अ स्पेस. चाहे वो कहीं भी हो, मैं मूवी देखने गया हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो आई कीप लुकिंग अराउंड माई सेल्फ कि क्या क्या हो रहा है. यू नेवर नो वट hits you back, what whenever you need that. So that is how I think I work on the design part and problem solving part. Yes. यू टेक मेंटल नोट्स? हाँ, mental notes. सो पिंटरेस्ट के अलावा आप और कहाँ पे जाते हो इंस्पिरेशन के लिए? घूमने निकल जाता हूँ. हाँ मतलब ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ऑनलाइन अब इतने सारे पोर्टल्स आ गए, एवरीबॉडी नोज. तो अब मैं स्टार्ट कर दिया है टेकिंग रेफरेंसेस फ्रॉम द रियल लाइफ, फ्रॉम फंक्शनैलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है. आप रेफरेंस देख के ना सोच तो लेते हो यार ये बनाना है, लेकिन आप कंडीशन देखो, आप स्पेस देखो, आप बजट देखो, क्लाइंट देखो. क्लाइंट देखो. ये क्लाइंट को बताना है तो क्लाइंट मत देखो. आप ये सारी चीजें देखो, फिर वो रेफरेंस देखो, या तो आप रेफरेंस देखो एज अ रेफरेंस. कॉपी पेस्ट मत करो. दैट्स व्हाट आई थिंक रेफरेंसिंग इज टू मी. आजकल लोग बस उठा के. मतलब आप कभी भी नहीं कर सकते, लाइक कॉपिंग अ डिजाइन is obviously not a good thing, plus you can't do it also, what I believe. It's very very useless to copy a design. तो आप देखो, इनहेरिट करो, ऑब्वियसली हम भी देखते हैं, भी हम रेफरेंस लेते हैं, बट उसके साथ कुछ नया अपना डाल दो, या आप आसपास देखो क्या हो रहा है. उस जिसके लिए आप रेफरेंस ले रहे हो, उसकी एक्चुअल की नीड है, उसे उसमें इनकॉर्पोरेट कर दो, रादर देन जस्ट कॉपिंग पेस्टिंग इट. इससे याद है, वी आर ड्रिंकिंग कॉफी, तो आजकल कॉफी रेट चल रहा है. हैव यू सीन ऑन इंस्टाग्राम? फिर या हाँ सॉरी, कॉफी रेव. हाँ, इससे मुझे याद आया, रिसेंटली बिल्ट अप अ हॉट डॉग place. So everybody into fast food is into pizza, burger. So it's a upcoming brand. It's already a brand. Cloud Kitchen है, Super Dogs करके. So when I started this project with the client, what we had in mind was to make it just not a hot dog place but a culture, which is a very good point he had, and we commonly came into that. मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने पिज्ज़ा या बर्गर खाना है, नहीं, हॉट डॉग को कल्चर बनाना है, where you can just it's a fashion. So that fashion we are putting up into space now. So if you enter, you are in that culture, of that hot dog and taking it easy, talking, television, watching a match. You're having like events over here. A good music DJ comes up, play. So we created that space vibe. So I think just not, well, of course, Coffee Rave has been an inspiration, but a lot of things are getting into it, and building that space experience a way we come. अब इंटीरियर सिर्फ वो नहीं है कि चार दीवार सुंदर होनी चाहिए, बढ़िया सीलिंग होनी चाहिए, वो अच्छी लाइटें हो, तड़कता भड़कता शैंडलियर हो तो मज़ा आ जाएगा, ऐसा नहीं है. मतलब होना चाहिए हर चीज़ का, तो मज़ा आ जाएगा. वो थोड़ा फिर लॉन्ग लास्टिंग भी चलता है ना. इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट. एक रिकॉल फैक्टर होता है. रिकॉल होना इज द मेन थिंग. So that's why I like working with this hot dog brand, because it was new, कुछ नया सोचना था, उसको फैशन में लाना था.
So we are building that, and I'm sure it's gonna turn up heads. Shlok, tell me 5 elements on a budget to make any space look luxurious instantly. बिल्कुल ग्राहकों वाला पॉइंट लेके आए हो तुम. Common man. एक तो आई थिंक इफ आई स्टार्ट वन बाय वन, स्टार्ट फ्रॉम द सीलिंग, गो फॉर अ प्लेन सीलिंग. आपको कोई तड़कती भड़कती है, कोई भी लाउड सीलिंग करने की नीड नहीं है. जस्ट गो फॉर अ नाइस प्लेन सीलिंग. प्ले विद लाइट्स. लाइट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. महंगी नहीं आती लाइट, सस्ती आती है. अब लाइटें लो, सही कलर की लो और सही वॉट की लो, मोर देन इनफ. तो आपका एक एलिमेंट यहाँ से क्लियर हो जाता है. सेकेंडली, कमिंग टू द वॉल्स. अब वॉल्स को जितना भी भर लो उतना कम है. I would say if you wanna, entertain your walls and make them dramatic, go for moldings. Very simple, very easy to install. They come in different material, POP, wood, PVC. बहुत सारे option है. Easy to install, low on budget. Enhance them, add a wallpaper inside it. नहीं भी करोगे तो भी अच्छा लगेगा. Flooring, very simple. Go for a nice carpet or maybe nice flooring or tiles on the budget. Marble is of course on the beyond. Choosing the right materials. जरूरी नहीं आपको महंगे पर्दे लेने. Go for a nice suede velvet का कपड़ा लो ना, सस्ता आता है. It's cheap. अब अच्छे पर्दे लगाओ, क्लीन लगाओ. जितना सटल रखोगे, क्योंकि there's a lot of things. 5 एलिमेंट लो, सबको मिनिमल रखो, things will come out nice. Add something. आपको कुछ पर्टिकुलर एक चीज़ है, 2 चीज़ पसंद है, उसको लाउड कर दो. बाकी सबको दो. सबको अच्छा करने जाओगे ना तो वो बेकार भी होगा और ओवरबोर्ड भी जाएगा. तो ऐसे कर सकते हो. 3 are the most beautiful visual merchandises you have come across. 6. 3. अच्छा 3 ऐसे तो बहुत सारे हैं, but what coming to my head which really attracts to me is the brand Hermes. Their window displays, their the visual merchandising is crazy, and the designer behind is Ruchir Shroff. He is a multidisciplinary designer. He is into products, furniture, but that displaying of the brand identity, creating those aesthetic vibe. He is doing visual merchandising and he's doing crazy. I love his designs. What is the maximum money you have made out of a single project? यार मैक्सिमम अभी तो हुआ नहीं है, मतलब अभी मैक्सिमम होना है. बट इतना पता है जितनी इंटीरियर डिज़ाइन की फीस होती है लॉन्ग टर्म के लिए, वो मैं सेट से एक दिन में कमा लेता हूँ. तो आप समझ लो हिसाब से. So, I've prepared one rapid fire section for you. Let's start. Are you ready? Yeah, of course. So, Animal Prints as wallpaper, hit or a miss? Hit, if used wisely. One overrated design trend that should have been left behind in 2020. Behind 2020, COVID. Furniture, ready-made or custom? Custom. Describe your design style in 3 words or less. Functional. Sometimes maximalist in a way, and timeless. Wood or marble? What is more timeless? Wood. Favorite celebrity home? Favorite celebrity home? आपने Big Bang Theory देखा? कुणाल नैयर. I really like his place. Burst one myth related to interior designing. कि पैसा लगाने से घर अच्छा लगता है. You can't Shazam good taste. You have to, yes, of course. Have you ever lied to a client just to get the work done? Yeah, half an hour back. One expensive client with no further references or one cheap client with many further references? I think an expensive client with no further references. Referencing मैं कर लूँगा. Nice. I think that's all for rapid fire. One last question I have for you. What is the best piece of advice you ever received? Best piece of advice I ever received. Don't stop. Don't stop. Like, never stop. Just keep working on yourself. Don't give up. Don't give up, yes. I think that's all for now. And thank you so much for giving us your time. I hope you had a lovely time. Yeah, lovely. I hope our viewers got something out of this conversation. And thank you for watching. See you next week. Stay tuned, guys. Like, subscribe, and Share. share.